Hello students, let's continue with our second session for web designing. In this particular session, we are going to cover these particular topics. Today we'll discuss the difference between HTML and HTML5. Then we'll throw the light on web browser. Then we discuss about text formatting text. Then structure of HTML. And at the end we will conduct one small demo how to write HTML structure and how to implement tags. Fine, so let's start with the difference between HTML and HTML5. As we all know that basic HTML is used for designing a simple web page, and we also discuss the same thing in a previous session about a group of web pages become a website. Yes, a static website. So let's discuss about the HTML and HTML5. Obviously, the HTML is, the belong to version 4, and HTML itself is having the version of 5. Differences means the HTML4 version having some separate functionality and features, and the HTML5 having a new introduced tags and few features. Okay, that become, it's very easy to handle and develop the web page. So let's start with the differences. In HTML, it contains the elaborate type of character encoding. Character encoding means what? Whenever you develop the website, at that time you have to mention the character code. Means countrywide you can mention it like UTF-8 and the other UTF. What is the useful of what is the use of this? The use of character encoding is it will support in a different language, which HTML, basic HTML can't support a multilingual, but in a HTML5 it contains the easier type of character coding. You can even provide the multilingual and different character encoding in a HTML5. Let's next, it does not support audio video tag. Okay, and in case of HTML5 it will support audio tag and video tag. Now what is the purpose of audio and video tag? Generally it is the if some web page required for integration of some player, audio player or video player. Suppose if you want to play some song, then you can use audio, and the audio is possible with the audio tag. And when you use a video tag, then you can play any particular video clips. Okay, so simple HTML will not support the audio video tag, whereas HTML5 will definitely give you the good support of the player of audio and video. Right? Let's move to the next. HTML uses browser cache memory as temporary storage. Okay, means what? Whenever some user history data, user credential data, or any searching data, generally we using HTML, what happen? All the data are stored in a cache memory. Okay, and in HTML file, it will provide HTML file having a good feature for saving the user data. That is, data can be stored in a SQL database, application cache and web storage. So इतनी सारी मेथड है, ट्रिक है टू स्टोर द यूजर इंफॉर्मेशन. ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं HTML पे. प्रोग्रामर आर अनएबल टू यूज फीचर दैट डिटरमाइन a user's geolocation. Obviously, in a traditional HTML, what happened?
यूजर का डिवाइस का जो जियो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, whereas in HTML5 having a great feature by provided by the JavaScript API. With the help of JavaScript API geolocation, यूजर का लोकेशन आइडेंटिफाई हो सकता है थ्रू द वेबसाइट. यस, ओके. नेक्स्ट, HTML tag, head tag, body tags are mandatory while the coding. Obviously, नहीं तो ब्राउजर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये HTML कोड का एग्जीक्यूशन है या नहीं. इन केस ऑफ HTML5 के अंदर HTML बॉडी एंड हेड टैग आर ओमिटेड वाइल कोडिंग, मतलब जरूरी नहीं है, उसके रिप्लेसमेंट में और भी अलग से डिफाइंड टैग्स है, आप उसे यूज कर सकते हो. ठीक है. ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर आर नॉट प्रोवाइडेड, जबकि HTML फाइल में आप कोई भी एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. नो नीड टू राइट ब्रीफ कोड फॉर HTML एलिमेंट्स. तो ये बात हो गया हमारा यूनिट 1.1 का HTML वर्सेस HTML5 का डिफरेंसेस. ओके, चलो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं ब्राउजर की ओर. ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है, that is for वेब ब्राउजर. हम वन बाय वन देखेंगे. यहाँ पे मैंने पूरा मैन्युअली इमेज को कैप्चर करके फिर उसको एडिटिंग किया है, आपको ध्यान से देखना है. ये पूरा वेब ब्राउजर है. सबसे पहले ब्राउजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ब्राउजर्स क्या है. वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से हम URL के थ्रू कोई भी वेब पेजेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, याहू, फेसबुक एक्सेट्रा. फाइन. नाउ मेन चीज जो हमें समझना है, सबसे पहले हम बात करेंगे जब आपका वेब ब्राउजर लोड होगा तो सी माय माउस पॉइंटर, दिस इज व्हाट योर टाइटल बार. ये आपका टाइटल बार है जहां पे आप कोई भी मैसेज को लिख सकते हो. ओके. लेटर ऑन एट द एंड ऑफ स्लाइड देयर इज अ डेमो, और वो डेमो के अंदर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि टाइटल बार के अंदर मैसेज कैसे लिखते हैं. ओके. देन इसे बोलेंगे हम एड्रेस बार. यहाँ पे हम URL टाइप करेंगे, जैसे कि अगर हमारा वेब पेज HTML का जो पेज है वो C ड्राइव के अंदर वेब डिजाइनिंग के फोल्डर के अंदर है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, C:\/ HTML वेब डिजाइनिंग फोल्डर का नाम स्लैश पेज का नाम, दैट इज सपोज HTML_structure.html. तो जैसे ही आप यहाँ पे URL टाइप करोगे तो पेज विल बी ओपन ओवर हियर. दिस इज नोन एज कंटेंट एरिया. चलो अब यहाँ पे देखो, ये आपका है स्टेटस बार. ये स्टेटस बार जो है, जब भी आप कोई लिंक पे आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो स्टेटस बार में उसकी पूरी लिंक की जानकारी आपको मिलेगा. ठीक है. करंट स्टेटस क्या है वो आपको दिखाएगा. ये जो है ये पोर्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गूगल, I'm talking about this particular area, topmost area is known as header area. Overall this overall area is known as content area, or you can say body part. Okay. Later on I will also explain about header में किस तरह से टाइटल लिखना है या हेडिंग देना है, और कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले कराना है. ठीक है. चलो, तो ये बात हो गई हमारी वेब ब्राउजर की. चलो आगे चले. अब बात करेंगे हम HTML स्ट्रक्चर की. नाउ ये देखो HTML स्ट्रक्चर. HTML इज ऑलवेज इनिशिएट विद HTML ओपन टैग, यानी कि इट इंडिकेट दैट वेब पेज इज रिटन इन HTML. यस, सो दैट HTML टैग यू हैव टू ओपन. देन आफ्टर दिस इज योर हेड सेक्शन. हेड सेक्शन के अंदर क्या क्या कंटेंट करता है, तो हेड सेक्शन के अंदर हेड टैग ओपन होगा, उसके सब टैग है टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज, और उसके बीच में टाइटल का मैसेज. अभी मैंने आपको बताया था कि टाइटल बार के अंदर आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना है तो वो टाइटल टैग के अंदर आएगा. तो यहाँ पे देखिए लिखा है टाइटल टैग के अंदर टाइटल ऑफ द वेब पेज, यानी कि टाइटल ऑफ द वेब पेज नाम का जो टेक्स्ट है वो टाइटल बार में दिखेगा. अब तो ये बात हो गई हेड सेक्शन की. उसके बाद अब बात करेंगे हम बॉडी सेक्शन की. Body section contain the content of web page. Okay, what it consists of,
It is contain the content of or detailing of the web page, all the briefing information regarding the web page. And then you have to close the HTML tag. So students, the HTML structure consists of HTML open, head open, title close, head close, body open, body close, and HTML close. Is it okay? It's very simple. Okay, let's move ahead. The next that is the unit 1.3 is टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट होता है, अब टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट इज नथिंग बट इट्स समथिंग कीवर्ड और वर्ड और लेटर। जब आप उसे उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करते हो, फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग मीन्स इफ यू इम्प्लीमेंट ऑन टेक्स्ट समथिंग लाइक ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, उसका साइज बढ़ा रहे हो, आप साइज डिक्रीज कर रहे हो, ओके आप कुछ फॉन्ट का स्टाइल दे रहे हो, ठीक है, कर्सिव में लिख रहे हो, तो ये जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसको बोल्ड करोगे, उसको इटालिक करोगे, ठीक है, उसके हेडिंग उसको ब्लिंक करोगे, ठीक है, तो ये सारी इफेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और उसके लिए स्पेसिफिक टैग्स है। फॉर एग्जाम्पल बी टैग, आई टैग, यू टैग। सपोज बी टैग इज यूज फॉर बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप कर सकते हो। आई स्टैंड्स फॉर इटालिक, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, ओके। वैसे एड्रेस, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एड्रेस कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो तो आप एड्रेस टैग ओपन करके उसके अंदर एड्रेस डालोगे, एड्रेस टैग क्लोज कर दोगे तो एड्रेस का एक अलग फॉन्ट में आपका एड्रेस जो है वो डिस्प्ले होगा। बिग से आपका नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो बिग टैग यूज होता है। div tag means it's a division tag. Yes, it's a separate some allocate the space, so उसके लिए div tag यूज होता है। em stands for emboss tag। h1 to h6 means ये heading tag है। h1 सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, h2 उससे छोटा, h3 उससे छोटा और h6 सबसे छोटा। p tag stands for paragraph tag। p tag stands for pre tag means जो फॉर्मेट में आप लिखोगे वही एज इट इज फॉर्मेट में वो प्रिंट होगा। आई विल शो यू व्हेन वी कंडक्ट सम डेमो, ओके। स्मॉल के अंदर नॉर्मल साइज से छोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड इफेक्ट हो जाएगा। अगेन बोथ आर द सेम, बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग। सब मीन्स इट्स सब स्ट्रिंग मीन्स जब आप लिखोगे h2 SO4 तो h2 जो है वो h का सबऑर्डिनेट है, तो आप जब h के बाद सब के अंदर 2 लिखोगे तो 2 जो है वो स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। ब्लिंक इफेक्ट में टेक्स्ट ब्लिंक करेगा। फॉन्ट के अंदर आप अलग अलग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो और कोड के अंदर आपका जो कोड है वो स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल के अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस ऑल आर you can say text formatting tags. Now this is what a correct time to conduct one small demo for HTML structure. See, in HTML structure demo we will learn how to create. Hello students, so today we will implement with a live demo of HTML, how to create HTML file, how to write HTML structure and all. Fine. So let's create one folder first of all. Here I'm going to create one folder. Folder name will be web designing. Inside the folder, let me create one file that is a text-based file, something like this. Okay. You have to create text-based file, but remove everything and give the name something like that. Program sorry, HTML structure.html. Here you have to care, you have to give the file name along with the extension of .html. Students यहाँ पे गलती नहीं करना है, जो भी चाहे आप फाइल का नाम दो लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है वो .html होना चाहिए, ओके। देन प्रेस द एंटर बटन, देन क्लिक ऑन यस। सी, ये हो गया आपका फाइल .html के साथ। नाउ अब आपको किस तरह से इसके साथ काम करना है, वेरी सिंपल। राइट क्लिक करो,
जैसे आप राइट क्लिक करोगे ओपन विथ नोटपैड करो। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो फाइल है वो हम रन करेंगे, सॉरी लिखेंगे नोटपैड के साथ। सिलेक्ट ऑप्शन नोटपैड, क्लिक ओके। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो मेरा नोटपैड है जिसका फाइल का नाम, फोकस ऑन माय माउस पॉइंटर, जिसका फाइल का नाम है html_structure.html। ये एक्सटेंशन है, फाइल का नाम html। ओपन किया है हमने नोटपैड के अंदर। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। हमने जैसे कि स्ट्रक्चर में बात किया था कि ऑलवेज HTML अगर लिखना है तो सबसे पहला हमें आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अब HTML स्ट्रक्चर किस तरह से लिखते हैं ये देखिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि HTML का कोड जो ब्राउजर रन करेगा, जब भी ब्राउजर का HTML कोड मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि अब जो पूरा एग्जीक्यूट करना है वो कुछ वेब पेज है और उसके अंदर कुछ ना कुछ रन होने वाला है। सो बी केयरफुल अबाउट बिकॉज HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, एंड बट प्रिफरेबल जो है कोई भी एक पर्टिकुलर केस में लिखेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ W3C। ये हो गया हमारा हेड टैग क्लोज। अब हो गया बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज एंड लास्ट में HTML क्लोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लिखा होगा HTML ओपन किया, HTML टैग ओपन किया, उसके अंदर हमने क्या किया, हेड टैग लिखा, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखा, टाइटल टैग क्लोज करने के बाद हेड टैग क्लोज किया, फिर बॉडी टैग ओपन किया, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया। अब HTML को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली उसे सेव कर देते हैं। जैसे मैं कंट्रोल S के साथ में सेव कर रहा हूँ, अब ये मेरी फाइल सेव हो गया। ये देखो, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। टाइटल यानी कि टाइटल बार के अंदर आपको कोई पेज का नेम या कुछ मैसेज आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। पहले मैं इसे रन करके दिखाऊंगा, फिर मॉडिफाई करूंगा और फिर वापस रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके चलो स्टूडेंट्स रन करते हैं। सिंपल डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, जैसे डबल क्लिक करेंगे ये मेरा पेज जो है वो रन हो गया। अब देखो ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है और ये हमारा टाइटल है। टाइटल बार के अंदर जब आप कुछ नहीं मेंशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो फाइल का नाम वो डिस्प्ले करेगा। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, चलो हम कुछ चेंज करते हैं। और यहाँ पे हम जाएंगे वापस हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, नोटपैड के अंदर, और टाइटल बार के अंदर लिखेंगे वेब डिजाइन और ब्रैकेट में लिखेंगे HTML। ओके, सो अगर इस तरह से जब मैं इसे रन करूंगा, लेट चलो सेव करते हैं इसे सेव करेंगे। अब इसे वापस रन करना है। देखो बार बार आप चेंज करने के बाद जब भी आप उसे ओपन करोगे तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब आप उसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे टाइटल बार चेंज होके आ जाएगा, देखिएगा। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो वेब डिजाइन HTML टाइटल बार के अंदर आ गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, इज इट वेरी इजी? फाइन। चलो अभी हम बात करेंगे हेड टैग के अंदर, ठीक है। हेड टैग के अंदर लिखते हैं, सपोज कोई एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल H1 हेडिंग टैग ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ परफॉर्म माय फर्स्ट design, it's not perform, let's write design my first web page। और यहाँ पे H1 टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं चलो सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सेव कर दिया। अब मैं वापस आउटपुट विंडो में आके रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए डिजाइन माय फर्स्ट वेब पेज, ये हेडिंग में आ गया। चलो अब वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बॉडी के अंदर लिखते हैं कुछ ना कुछ। मैंने आपको पी टैग के बारे में बताया था, चलो पी टैग लेता हूँ। पी टैग के अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ओके,
सो यहाँ पे मैं p टैग को क्लोज करूंगा क्योंकि p टैग जो है वो कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग क्या होता है, जो टैग ओपन हो रहा है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी क्लोज करना पड़ेगा। चलो तो इसे मैं सेव कर देते हूँ, इसे रिफ्रेश करेंगे। यस, सी, hello everyone, how are you? Is that clear everyone? So this is what a small part of demo for HTML structure and implement the tag. Okay, next session इससे भी interactive होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। So students, I hope you got all the point regarding how to create HTML file and how to perform HTML structure and tags. Okay.